It's just like God likes His prophets to be an eagle. Now, an eagle is a special bird. He's just a bird, but he's a special bird. And he can fly higher than other birds. He can see farther than other birds. ये इस प्रकार से है कि परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता को एक उकाब के समान पसंद किया। अब उकाब एक विशेष पक्षी है। वो एक पक्षी है, परंतु वो एक विशेष पक्षी है और वो दूसरे पक्षियों से अधिक ऊंचा उड़ सकता है। वो दूसरे पक्षियों से अधिक दूर देख सकता है। And now in order to go higher, he's got to be built so he can go higher. And what good would it do him to go up there unless he could see what he was doing after he got up there, see? So he has to be a special built bird, see? और अब ऊंचाई पर जाने के लिए वो ऐसा बना है कि वो ऊंचे पर जा सके। इससे उसका क्या भला होगा कि वो ऊंचे पर जाए जब तक कि वो ये ना देख सके कि वो जहां जाकर वो क्या कर रहा है, समझे? इसलिए उसे विशेष बना हुआ पक्षी होना है, समझे? He's kind of in the hawk family. He's a ripper with the bill, and he eats. Many of them are scavengers. There's about 40 different kinds of eagles. उसे बाज के परिवार का सा होना है। वो चोंच से फाड़ने वाला है और वो खाता है। उनमें से बहुत से मरुओं को खाने वाले होते हैं। लगभग 40 प्रकार के उकाब होते हैं। But you see, in the church there is a pastor, and that pastor is a special person. He's built to where he can put up with the fussings of the people. He's a burden bearer. He's the ox of the team. परंतु आप देखते हैं वहाँ कलीसिया में एक पास्टर है और वो पास्टर एक विशेष व्यक्ति है। वो बना है जहाँ सके उसे लोगों के झगड़ों में डाला जा सकता है। वो एक बोझ उठाने वाला है। वो उस दल का बैल है। He's a man that can sit down when somebody's got something against somebody else and sit down with them two families and take neither side and reason it out and bring it right back into sweetness. He's a pastor. He knows how to take care of things. वो मनुष्य है जो बैठ सकता है जब किसी का किसी से कुछ विरोध है और उन दो परिवारों के साथ बैठकर और किसी का भी पक्ष न लेते हुए और कारणों को बाहर करके वापस मिठास में लाना, समझे? वो एक पास्टर है। वो जानता है कि चीजों की चिंता कैसे की जाए। The evangelist is a special man. He's a man that's burning like a fireball. He runs into a city and preaches his message and gets out of there somewhere else. See, he's a special man. सुसमाचार फैलाने वाला एक विशेष मनुष्य है। वो एक ऐसा मनुष्य है जो आग के गोले के समान जलता है। वो एक नगर में जाता है और अपना संदेश प्रचार करता है और फिर वहां से कहीं और चला जाता है। देखिए, वो एक विशेष मनुष्य है। The teacher is a special man. He sits back under the anointing of the Spirit and is able to take the words and put them together by the Holy Spirit. That the pastor evangelist, either one could not compare with him. शिक्षक एक विशेष मनुष्य है। वो आत्मा के अभिषेक में पीछे बैठता है और योग्य है। वचनों को पवित्र आत्मा के द्वारा लेकर एक साथ मिलाता है कि पास्टर और सुसमाचार फैलाने वाला किसी की भी तुलना उससे नहीं की जा सकती। And then we find out the apostle is a special man. He's a setter in order. He's a man that's sent from God to set the things in order. और फिर हम पाते हैं कि प्रेरित एक विशेष व्यक्ति है। वो एक व्यवस्था को व्यवस्थित करने वाला। वो एक मनुष्य है जो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है कि चीजों को व्यवस्थित करे। The prophet is a special man. A prophet is a man of whom the word of the Lord comes to, because the prophet is so designed life that his subconscious and his first conscience is so close together that he doesn't go to sleep to dream his dream. He sees it when he's wide awake. भविष्यद्वक्ता एक विशेष मनुष्य है। एक भविष्यद्वक्ता वो मनुष्य है जिसके पास प्रभु का वचन आता है, क्योंकि भविष्यद्वक्ता इस प्रकार का बना होता है जीवन कि उसका उपविवेक और उसका पहला विवेक इतने पास पास होते हैं कि उसे स्वप्न देखने के लिए सोना नहीं पड़ता। वो जब जागा हुआ होता है वो इसे देखता है। Now that's something God has to do. See, he sees what's going. A prophet foresees way off. See, the things that is coming. He sees the cup of God's wrath full before it is filled. समझे? ये कुछ है जिसे परमेश्वर को करना होता है।
वो देखता है कि क्या हो रहा है। एक भविष्यद्वक्ता पहले से ही देखता है, आने वाली चीजों को देखता है। वो परमेश्वर के क्रोध को देखता है इसके पहले कि प्याला भर जाए। समझे? He can say, "Thus saith the Lord, God will destroy this city except you repent." Why? He's an eagle. He rides way in yonder. See? वो यहोवा यूं कहता है, कह सकता है, परमेश्वर इस नगर को यदि प्रायश्चित नहीं किया तो नष्ट कर देगा। क्यों? वो एक उकाब है, वो दूर की सवारी करता है। समझे? And he looks way off there and he sees that cup of wrath poured out. That's what the prophet's looking at. He ain't looking what's going on here. He's looking yonder. He's saying it's a coming. वो वहां से हटकर दूर का देखता है और देखता है कि क्रोध का प्याला उंडेला जा रहा है। यही जो भविष्यद्वक्ता देख रहा है, जो यहाँ चल रहा है। वो ये नहीं देखता, वो उधर देखता है। वो कह रहा है ये आ रहा है। He can go so high till he can see that shade. He said the world will be darkness and gross darkness. He's up high enough, the sun's shining now, but he sees that shade coming. And he's saying what he's looking at. Amen. वो इतना ऊंचा जा सकता है जब तक कि परछाई देख सकता है। उसने कहा संसार अंधकारमय हो जाएगा और घना अंधेरा। वो इतनी ऊंचाई पर है कि जब सूर्य चमक रहा है, परंतु वो उस छाया को आते देखता है और वो कह रहा है जो वो देख रहा है। It ain't here yet, but it'll sure be here. That's right. It's going to be here. Gross darkness upon the people. He knows it's coming. Years away, yet he sees it. ये अभी यहाँ नहीं है, परंतु ये निश्चय ही यहाँ होगा। ये ठीक बात है। ये यहाँ होने जा रहा है। लोगों पर घना अंधकार है। वो जानता है आने वाले वर्षों में ये यहाँ होने जा रहा है। फिर भी वो ये देखता है। Amos, that anointed prophet of God, he saw the darkness and the judgment. He's seen Syria come down with their chariots and sweep through there and slaughter them people out. आमोस वो परमेश्वर का अभिषिक्त भविष्यद्वक्ता, उसने अंधकार को देखा और न्याय को। वो सीरिया को उसके रथों के साथ आते देखता है और वहां पर साफ कर देता है और लोगों को घात करता है। He saw it coming and the judgment of God upon him. Now 50 years before it happened. But you see, being a prophet, he was lifted up into the Spirit and he saw it far off. See? He saw the cup full before it was filled. उसने ये आते हुए देखा और परमेश्वर का न्याय उन पर है। अब ये 50 वर्ष पहले घटित हुआ, परंतु आप देखिए, भविष्यद्वक्ता होने के नाते वो आत्मा में उठा लिया गया और उसने ये दूर से देखा। समझे? उसने प्याले को भरा हुआ देखा इसके पहले कि वो भरा था। Like Abraham. God told Abraham, your seed shall come into this country and sojourn here for 400 years. And then I'll bring him out with a mighty hand because the iniquity of the Amorites is not yet full. जैसे अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम को बताया, तेरा वंश इस देश में आएगा और 400 वर्षों तक परदेसी रहेगा और फिर मैं उनको अपने सामर्थी हाथ से बाहर ले आऊंगा क्योंकि अमोरियों का पाप अभी पूरा नहीं हुआ है। See, God knew that cup was going to fill up. He's speaking with his prophet. He told him, now, you see that cup of the Amorites down there. See? But their iniquity is not filled up yet, Abraham. Don't say nothing about it now. Hold off. But it will come. समझे? परमेश्वर को मालूम है कि वो प्याला पूरा भरने वाला है। वो अपने भविष्यद्वक्ता के साथ बातें कर रहा है। वो उसे अब बता रहा है, आप अमीरियों के प्याले को वहां पर देखते हैं। देखिए, परंतु उनके पाप का प्याला अभी भरा नहीं है। अब्राहम अब इस विषय में कुछ ना कहे, रोके रहे, परंतु ये आएगा। And when their cup's filled up, then 400 years, I'll drive them out like locusts before you, and I'll establish your seed here in this land. Amen. Hallelujah. That's the prophet of the Lord. और जब उनका प्याला भर जाता है और वे 400 वर्षों में मैं उन्हें तुम्हारे सामने से टिड्डियों के समान निकाल दूंगा और मैं तेरे वंश को यहाँ इस देश में स्थिर करूंगा। आमीन। ये प्रभु का भविष्यद्वक्ता है। Now, when he speaks of his vision, whether it's wrath or whether it's healing,
It may linger, but it's got to come to pass if he speaks it in the name of the Lord. अब जब वो अपने दर्शन के विषय में बोलता है, चाहे ये क्रोध है, चाहे ये चंगाई है, देर हो सकती है, परंतु इसे घटित होना ही है, यदि ये उसमें प्रभु के नाम में होकर बोला है, समझे? It might be a blessing that he speaks for you. He might tell you a certain thing. You can't see it at all. You say, how can it be? He told me, thus saith the Lord, this is going to happen, and that was going to happen. And it ain't happening. The man's wrong. ये आशीष हो सकती है, जो उसने आपके लिए बोली है, वो आपको निश्चित बात बता सकता है, और आप इसे बिल्कुल नहीं देख सकते। आप कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? क्यों? ये एक, मैं उसे, मुझे यहोवा यूं कहता है, कहा है, ये घटित होने जा रहा है, और ये होने जा रहा था, और ये नहीं हुआ, तो वो मनुष्य गलत है। Now you'll be judged for disbelieving it, but it's going to happen anyhow. It's got to happen. Though it linger, the Bible said, yet will it speak in its season. It'll come to pass. अब आपका इस पर अविश्वास के लिए न्याय होगा, परंतु जो भी है, ये घटित होने जा रहा है, समझे? इसे तो होना ही है, यद्यपि ये देर से है। बाइबल ने कहा, फिर भी ये अपने समय में बोलेगा, ये घटित होगा। The prophet's only looking off and seeing something. He's talking about what he's looking at. He ain't thinking about here and what you look like now. He's looking what it's going to be. भविष्यद्वक्ता तो केवल देख रहा है और कुछ होते हुए देख रहा है। जो वो देख रहा है, उस विषय में वो बात कर रहा है। वो यहाँ के विषय में नहीं सोच रहा है। और आप अब कैसे दिखाई दे रहे हैं, वो देख रहा है क्या होने जा रहा है। And when he speaks that, if it's in the word of the Lord, it's already been spoken. There's nothing in the world can stop it, you see. That's right. Only God himself. और जब वो बोलता है, यदि ये प्रभु का वचन नहीं है, ये पहले ही बोला जा चुका है, और संसार में ऐसा कुछ नहीं जो उसे रोक सकता है। आप देखिए, ये सही बात है, केवल परमेश्वर स्वयं। Notice, now we find that when he speaks his vision, the prophet does. Now sometimes he speaks good things. He speaks of your healing. All right, you might think it just can't happen. I haven't got any better. Then what does that do? That just brings the judgments of God upon you. That's right. See? ध्यान दें, अब हम पाते हैं कि जब वो अपना दर्शन बोलता है, जो भविष्यद्वक्ता करता है, अब कभी कभी वो अच्छी बातें बोलता है, वो आपकी चंगाई के लिए बोलता है। ठीक है, आप सोच सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता, मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है। तब ये क्या करता है? ये परमेश्वर के न्याय को आपके ऊपर लाता है। ये ठीक बात है, समझे? Jesus promised to save you if you'd believe it. If you don't believe it, it won't happen to you. You've got to accept it. You've got to believe it. See? यीशु ने आपको बचाने की प्रतिज्ञा दी है, यदि आप विश्वास करेंगे। यदि आप इसका विश्वास नहीं करते हैं, तो ये नहीं है, ये आपके लिए नहीं होगा। आपको ये स्वीकार करना ही है, आपको इसका विश्वास करना ही है, समझे? And you got to know from where it comes from. That gives your faith in God or your prophet. See? You've got to believe it. और आपको जानना चाहिए कि ये कहाँ से आता है। ये आपको परमेश्वर में विश्वास देता है, या आपका भविष्यद्वक्ता, समझे? आपको इसका विश्वास करना ही है। Now we find out here that these prophets that spoke, they spoke, and what they said come to pass. If the wrath of God is poured upon the people, there's only one thing. If that prophet says there's something other's going to happen, there's only one thing that'll stay the hand of God, that's repentance. Amen. और अब हम यहाँ ये पाते हैं कि ये भविष्यद्वक्ता जो बोले, वे बोले, और जो उन्होंने कहा वो घटित हुआ। और यदि परमेश्वर का क्रोध लोगों पर उंडेला गया, तो केवल एक ही चीज है। यदि उस भविष्यद्वक्ता ने कहा है कि कुछ और घटित होने जा रहा था, केवल एक ही चीज है जो परमेश्वर के हाथ को रोक सकती है, और वो प्रायश्चित है। That's repentance towards God. That stays His wrath. Now don't wait for it. Do it then. God says anything, you do it then. वो प्रायश्चित परमेश्वर की ओर, ये उसके क्रोध को रोक सकता है। अब इसकी प्रतीक्षा न करें, इसे तभी कर लें। परमेश्वर कुछ भी कहता है, उसे तभी कर लें।